Water or rock storage. Water and rocks are the two most common material for the storage of heat in the greenhouse. वाटर और रॉक बहुत कॉमन मटेरियल है अगर किसी हीट को स्टोर करना है तो ठीक ग्रीन हाउस के अंदर 1 kg of water can hold 4.23 kilojoule of heat for each 1 degree centigrade rise in temperature. अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करें टेम्परेचर को तो 1 किलोग्राम जो वाटर है वो कितनी हीट रख सकता है अपने अंदर 4.23 किलो जूल हीट रख सकता है और रॉक कैन स्टोर अबाउट 0.83 किलो जूल फॉर ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रॉक जो है वो कितना हीट अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है 0.83 किलो जूल है ना टू स्टोर equivalent amounts of heat, a rock bed would have to be 3 times as large as a water tank. ठीक है रॉक ज़्यादा करता है मतलब हीट को स्टोर ठीक है To store equivalent amount of heat, a rock bed would have to be 3 times as large as a water tank. वाटर टैंक से 3 गुना ज़्यादा रॉक को हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर हमको सेम अमाउंट में हीट स्टोर करवाना है क्योंकि ये देखो अब 0.83 किलो जूल जो है वो 4.23 किलो जूल से कितने टाइम्स छोटा है 3 टाइम्स मतलब अगर हम 0.83 में कितने का मल्टीप्लाई करें 3 का तब जाके वो 4.23 किलो जूल बनेगा ठीक है अ वाटर स्टोरेज सिस्टम इज वेल एडॉप्टेड to a water collector and a greenhouse heating system which consists of a pipe coil or a unit heater which contain a water coil मतलब वाटर जो है वो ज़्यादा हीट स्टोर कर रहा है इसलिए हम ग्रीन हाउस में कौन सा हीटिंग सिस्टम को रखते हैं वाटर हीटिंग सिस्टम को रखते हैं और क्या क्या करते हैं हम पाइप्स रहते हैं ग्रीन हाउस के अंदर जिसमें वाटर फिल होता है और वो हीट को एब्जॉर्ब करता है ठीक है तो heated water from the collector is pumped to the storage tank during a day as and when heat is required. Warm water is pumped from the storage tank to a hot water or steam boiler or into the hot water coil within a unit heater. Although the solar heater water will be cooler than the thermostat setting on the boiler, heat can be saved since the temperature of this water need be raised as high as to reach the output temperature of water or steam from the boiler. A temperature rise of 17 degrees centigrade above the ambient condition is expected during the daytime in solar storage unit. Each kilogram of water can supply 71.1 kilojoule of heat and each kilogram of rock can supply 14.2 kilojoule of heat as it cools by 17 degree centigrade. तो आई थिंक ये तो आप समझ ही गए होंगे ठीक है A rock storage bed can be used with an air collector and forced air heating system. In this case, heated air from the collector along with air excessively heated inside the greenhouse during the day is forced through a bed of rocks. The rocks absorb much of the heat. The rock bed may be located beneath the floor of the greenhouse or outside the greenhouse, and it should be well insulated against heat loss during the night. When heat is required in the greenhouse,
cool air from inside the greenhouse is forced through the rocks where it is warmed and the passed back into the greenhouse. मतलब क्या होगा, जब हम रॉक को गर्म करते हैं ना, रॉक गर्म हो जाता है तो उससे हीट रेडिएट होती है, फिर क्या करते हैं हम उसके ऊपर एयर को पास कराते हैं उससे, तो वो एयर जिसको हम पास करा रहे हैं हीट रॉक से, वो भी एयर गर्म हो जाएगी, और जब वो एयर गर्म होगी तो हम उसको पूरे ग्रीन हाउस में सर्कुलेट कर देंगे। उसी फंडे पे बेस्ड है, ठीक है। तो रॉक, द वाटर और रॉक स्टोरेज यूनिट occupies a large amount of space and a considerable amount of insulation is provided in if the unit is placed outside. अगर हम वाटर या रॉक स्टोरेज यूनिट लगाते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको, हमको इंसुलेट भी करके रखना पड़ेगा इनको, ताकि इनसे हीट रेडिएट ना हो, बाहर ना जाए। नहीं तो हम पता लगा इस पे हम स्टोर कर लिए हीट को और ये रेडिएट कर रही है हीट, है ना। फिर आगे देखते हैं हम, प्लेसिंग इट इनसाइड द ग्रीन हाउस ऑफर्स एन एडवांटेज इन that escaping heat is beneficial during heating period. हाँ, अगर हीटिंग करना है हमको जिस समय में, उस समय ये हीट रेडिएट कर रही हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जब हमको हीट की ज़रूरत नहीं है और उस समय भी ये रेडिएशन लगातार बाहर निकल रहे हैं वाटर और रॉक हीटिंग सिस्टम से या स्टोरेज यूनिट से, तो फिर हमारे लिए घाटा है। बट इट इज़ डेट्रीमेंटल व्हेन हीटिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड. A rock bed can pose a problem in that they must remain relatively dry. Water evaporating from these beds will remove considerable heat. नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रीन हाउस प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रीन हाउस प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर सिस्टम आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसिव तो है थोड़ा बहुत। अगर हम ऐसे ओपन में कर रहे हैं और ग्रीन हाउस में कर रहे हैं तो दोनों में कॉस्ट का डिफरेंस तो आएगा, पर हमें इतना भी डिफरेंस ना आए कि लोग बाग उसको एफर्ड ना कर सके, खरीद ना सके। इसलिए हमको देखना पड़ेगा वो इकोनॉमिक भी होना चाहिए, ठीक है। तो द इक्विपमेंट and production cost may be more than compensated by the significantly higher productivity of protect, protected agriculture system as compared with open field agriculture. The cost and returns of the protected agriculture vary greatly depending on the system used, the location and the crop grown। तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं आ रही है, ज़्यादा हम हाई कॉस्ट से तो नहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना। जो भी हम सिस्टम लगा रहे हैं जैसे हीटिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, उनका भी ध्यान रखना है हमको, ठीक है। वो ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं बढ़ा रहे हैं हमारे प्रोडक्शन की। तो बाय डिज़ाइन आल प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग आर इंटेंसिव in use of land, labor and capital. Greenhouse agriculture is the most intensive system of all. The intensity of land use is greatly depend upon the system of protected agriculture. Year-round greenhouse crop production is therefore much more sensitive than seasonal use of mulches and row covers, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा प्रोडक्शन तो नहीं आ रहा है हमारा ग्रीन हाउस के अंदर, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इकोनॉमिक होना चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतने।